Hello student, today we discuss the chapter number 5 of class 11, part 1, Fundamental of Physical Geography, भौतिक भूगोल के मूलभूत सिद्धांत, and lesson number 5, Earthquake and Volcanoes, भूकंप और ज्वालामुखी। हिंदी मीडियम वाले बच्चे साथ साथ नोट करते रहें प्लीज। हम हिंदी में भी एक्सप्लेन करेंगे और इंग्लिश में भी, तो प्लीज ध्यान दें सभी बच्चे, साथ साथ अपना नोट डाउन करते रहें। भूकंप और ज्वालामुखी। अकॉर्डिंग टू दिस वीडियो वी डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। अंतर्जनित बल और बाह्यजनित बल क्या होते हैं। व्हाट इज अर्थक्वेक एंड व्हाट आर कोजेस। भूकंप क्या है, इसके प्रमुख कारण क्या होते हैं। मेजरिंग ऑफ अर्थक्वेक, भूकंप का मापन किस तरह किया जाता है। इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक, भूकंप के क्या प्रभाव पड़ते हैं। सिस्मोग्राफ यंत्र किस काम आता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक, भारत में भूकंप का डिस्ट्रीब्यूशन वितरण कहां कहां आते हैं, कौन कौन सी तीन जो है इसकी प्रमुख बेल्ट हैं। नाउ वी विल डिस्कस इन डिटेल्स। फर्स्टली आई ट्राई इन इंग्लिश एंड आफ्टर दैट in Hindi. What is the meaning of endogenic and exogenic? You can say endogenic, you can say internal forces, and exogenic external forces. Endogenic forces which creates different types of modification in the inner part of the earth, these are known as the endogenic forces. Some types of forces responsible for the changement in the outer part of the earth, these are known as the exogenic forces. Means internal change in the inner part of the earth and external change on the out part of the earth. If you think about the example of endogenic, then you can say some types of forces creates the situation of earthquake and volcanisms. These are creates due to the internal forces. Yeah, you can say endogenic forces. And if you think about the exogenic, then you can say the weathering, erosion, flood. These are the exogenic, which is responsible for the changement upper part of the earth. That's clear. फर्स्ट में हमने करवाया अंतर्जनित बल और बाह्यजनित बल। अंतर्जनित बल कौन सा होता है, जो पृथ्वी के अंदर उत्पन्न हो और उसके आंतरिक भाग में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन करे तथा भूकंप और ज्वालामुखी जैसे कारकों को जन्म देते हैं, उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं। एक्सोजेनिक फोर्सेस यानी कि बाह्य बल। बाह्य बल कौन से हो गए, जो पृथ्वी के बाहर काम करते हैं। वो शक्तियां जो पृथ्वी के बाह्य भाग में परिवर्तन करने में सहायक होती हैं। बाढ़ आ जाती है, सूखा पड़ता है, तो उससे अपर्दन, अपक्षय, निक्षेपण ये प्रारूप कार्य करना शुरू कर देते हैं, जिससे बाह्य भाग पर जो परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। मैदानी भाग बनते हैं, पठारी बनते हैं, पर्वतों का निर्माण होता है, घाटियों का निर्माण होता है, भूमि उपजाऊ होती है, तो वो इसमें शामिल हो जाती है। दैट्स क्लियर इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ आल्सो। हिंदी मीडियम स्टूडेंट प्लीज साथ साथ नोट करते रहे। व्हाट इज अर्थक्वेक एंड कोजेस। अब दैट्स सो सिंपल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्थक्वेक। Earthquake, that is a vibration creates in the inner part of the earth and affect on the outer part of the earth also. That is known as the earthquake. That is a simple vibration due to different types of causes. That is known as the earthquake.
And if you think about the causes, then you can say different types of faults are cause of earthquake, because this fault creates the disturbance in the different types of layers of the earth. These layers disturb to each other, and this disturbance in the inner part of the earth, in the layers of earth, cause of the earthquake. Second, volcanic. Volcanic activity are also responsible for the earthquake. Before the volcanic, that is reality, come the earthquake, because due to the creates the volcanic activities, magma creates from the inner part of the earth, and that is create the vibration in the inner part of the earth and upper part of the earth, and that is the cause of the earthquake. Collapse is related to binings activity. In some types of situation, tens of the binings broke down and they creates the vibration. That is also cause of the earthquake. Explosion. Due to the explosion of different types of activities by the RBs and other, is also cause of the earthquake. Plate tectonics. Plates also move from one place to another place, and that is moving from one place to another place is responsible for the disturbance in the earth. That is also the cause of earth. Now in Hindi, भूकंप एक प्रकार से वो कंपन है जो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों और बाह्य शक्तियों के कारण उत्पन्न होता है। उस कंपन को ही हम, उस वाइब्रेशन को ही हम अर्थक्वेक कहते हैं, भूकंप कहते हैं। यानी कि पृथ्वी में कंपन होना ही भूकंप कहलाता है। अब इसके अलग अलग कारण हैं। फॉल्ट जो क्रैक्स हो जाते हैं, दरारें होती हैं चट्टानों के अंदर, वो दरारें कई बार चट्टानों को कंपन उत्पन्न करती हैं। चट्टानें लेयर्स में एक दूसरे के ऊपर टिकी हुई होती हैं। जब वो क्रैक्स हो जाता है तो वो डिस्टर्बेंस होकर के नीचे जाती है वो चट्टान। अब नीचे जाती है तो वो कंपन उत्पन्न होता है जिससे भूकंप आता है। फॉल्ट। वोल्केनिक ज्वालामुखी क्रिया। जब ज्वालामुखी आता है तो एक प्रकार से मैग्मा चट्टानों को ऊपर की तरफ धकेलता है जिससे कंपन उत्पन्न होता है, उससे भूकंप जो है वो आ जाती है। क्योंकि मैग्मा निकलता है, जोरदार ध्वनि के साथ निकलता है बाहर आने पर, जिसको लावा कहते हैं। उसमें कंकर, पत्थर, बजरी के रूप में, राख के रूप में, धुएं के रूप में, गैसों के रूप में अनेक ऐसी चीजें निकलती हैं जो भूकंप को जन्म देती है, अर्थात कंपन को जन्म देती हैं, और जिससे नेक्स्ट हमने बताया कोलैप्स यानी कि माइनिंग होता है, ये खनन से जुड़ा हुआ है। जब हम खनिजों को निकालते हैं तो बड़ी बड़ी सुरंगें हम बना लेते हैं। उन सुरंगों से एक छत तैयार हो जाती है और आंतरिक भाग खोखला हो जाता है। कई बार वो छतें गिर जाती हैं। उन्हें खनन या नियात भूकंप कहते हैं, या खनन भूकंप कह सकते हैं। तो वो खनन के कारण हो जाते हैं भूकंप। एक्सप्लोजन, विस्फोटक जो परीक्षण करते हैं हम, बॉम्ब का परीक्षण करते हैं। बॉम्ब का परीक्षण करते हैं तो वो काफी दूरी तक कंपन उत्पन्न होता है उससे, तो जो परीक्षण होता है उससे भी भूकंप उत्पन्न। प्लेट की जो टेक्टोनिक्स की थ्योरी है वो हमने पढ़ी है पहले चैप्टर में। तो प्लेट जब मूव करती हैं, गति करती हैं एक से दूसरी तरफ, तो इनमें तीन किनारे बनते हैं इनके, अपसारी, अभिसारी, रूपांतर। तो तीनों किनारों में कहीं ना कहीं प्लेटें डिस्टर्ब होती हैं, टूटती भी हैं, बनती भी हैं और आसपास निकलती भी हैं, जिससे वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है और भूकंप आ जाता है। तो ये मेन कारण भी हैं, और इनको हम ये भी कह सकते हैं कि भी दरारी भूकंप, ज्वालामुखी भूकंप, नियात या खनन भूकंप, या एक्सप्लोजिव भूकंप, या प्लेट विवर्तनिक भूकंप। इनको ये नाम टाइप्स में भी दे सकते हैं और ये कोजेस भी होते हैं। दोनों तरह से हम इसको कह सकते हैं।
2 टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये हमारा कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, मेजरिंग ऑफ अर्थक्वेक। अब जो मेजरिंग होता है इसका इंटेंसिटी, इसकी जो तीव्रता होती है, दैट इज मेजरिंग बाय द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सिस्मोग्राफ, एंड सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक, एंड दैट इज मेजरिंग स्टार्ट फ्रॉम द 1902 बाय मर्काली scientist, and noted the intensity, that is intensity start from 0 to 10. If that is intensity in any types of area 0 to 5 and 4, 0 to 4, that is not more harmful. If that is above 6, 7, 8, 9, that's so harmful for us. If you think about the Gujarat, then you can say there are 6.9 intensity is found of the earthquake. That is the measuring of the earthquake. भूकंप की तीव्रता, भूकंप का मापन। भूकंप का मापन हम उसकी तीव्रता के माध्यम से मापते हैं, उसके प्रभाव के रूप में मापते हैं, और उसकी शुरुआत 1902 में हुई थी। मर्काली ने इसको मापा था सबसे पहले। ये जो तीव्रता होती है इसकी लेस पर डिपेंड करता है, पीएस और एल के द्वारा, सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा इसको मापा जाता है। अब इसमें जिसकी 0 से 10 तक जो है तीव्रता होती है, अगर उसकी तीव्रता, अगर उसका प्रभाव 0 से 4 तक होता है तो ज्यादा हानिकारक नहीं होता है, लेकिन अगर वो 6 और इससे ऊपर होता है या 5 से ऊपर होता है तो बहुत ही नुकसानदायक होता है, बहुत हार्मफुल होता है। और गुजरात में जो भूकंप आया था 26 जनवरी को, तो वो भी काफी हार्मफुल था, उसकी तीव्रता 6.9 थी, और इस तरह से जो है इसका मेजरिंग किया जाए। दैट्स आल्सो करिए। अफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक, अफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक। There are different types of effect of earthquake due to it creates in many types of area. Disturbance in electricity, disturbance in communication, disturbance in transportation, disturbance in house building, disturbance in market, effect on economy. These are the major effect of earthquake on the earth. अलग अलग तरह के प्रभाव पड़ते हैं। फर्स्ट हमने बताया जैसे इफेक्ट ऑन द वाटर बॉडीज आल्सो, बिकॉज ड्यू टू द अर्थक्वेक, अर्थक्वेक इज आल्सो कॉज ऑफ द फ्लड। ये बाढ़ का कारण भी बन जाता है। नदियों में जैसे भूकंप आ जाता है, वो डिस्टर्बेंस हो जाता है, किनारे टूट जाते हैं, पानी अवरुद्ध हो जाता है, तो बाढ़ आ जाती है। इलेक्ट्रिसिटी की जो लाइनें टूट जाती हैं, ब्रोक डाउन हो जाती हैं भूकंप से, उससे हमारी विद्युत व्यवस्था ठप हो जाती है। कम्युनिकेशन के जो टावर्स वगैरह हैं वो गिर जाते हैं, तो हमारी संचार व्यवस्था बाधित हो जाती है इससे। अनेक बार भूकंप आने से सड़कें टूट जाती है, क्योंकि चट्टानें खिसकती हैं इसमें, चट्टानें टूटने से हमारी परिवहन व्यवस्था बाधित हो जाती है इससे। अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा, कम्युनिकेशन रुक जाएगा, तो फिर हमारी ये तो आर्थिक धमनी होते हैं, संचार और परिवहन, तो इससे क्या होगा, फिर हमारी अर्थव्यवस्था नीचे आ जाती है, अनेक बिल्डिंगें गिर जाती हैं। ये जो है मुख्य तौर पर भूकंप के सामान्य से प्रभाव पड़ते हैं। इसके अलावा अपार जान माल की हानि होती है। नेक्स्ट टॉपिक, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ, what is seismograph? Seismograph is a instrument. According to this instrument, we measure the intensity, we measure the effect of the earthquake. There are different types of waves, creates P, S and L due to the record by the seismograph. And this instrument tells us about of the intensity of
अर्थक्वेक। सिस्मोग्राफ एक ऐसा यंत्र है जो हमें भूकंप की तीव्रता के बारे में बताता है। इसमें एक ड्रम का प्रयोग किया जाता है, एक छड़ होती है, एक वायस होती है, उस तार के माध्यम से फिर तीनों तरंगों को जो है भूकंप आता है तो तीनों तरंगे उससे गुजरती हैं, पी, एस और एल। पहले प्राथमिक तरंगे, फिर एस तरंगे, फिर एल तरंगे, तीनों तरंगे गुजरकर जो है वो आगे आती हैं और ये दर्पण के माध्यम से हमें तीव्रता बता देता है कि भी कितनी तीव्रता है। अगर हमें पता लग जाता है ज्यादा तीव्रता है तो हमें संभलने का मौका भी मिल सकता है। यह आपका सिस्मोग्राफी यंत्र होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक। अब भूकंप कहां आता है तो इसकी देयर आर 3 मेजर बेल्ट इन द वर्ल्ड। फर्स्ट यू कैन से पैसिफिक बेल्ट, प्रशांत महासागरीय पेटी। 68% earthquake creates in these types of belt and there are the ring of fire, कंटिन्यू आते रहते हैं यहां पर। प्रशांत महासागरीय जो बेल्ट है इसके साथ लगते जो देश हैं उनमें भूकंप की तीव्रता बनी रहती है और 68% भूकंप जो इसी में आते हैं, इसलिए इसको रिंग ऑफ फायर, अग्नि वलय भी कहा जाता है। दूसरा है मिड वर्ल्ड माउंटेन्स। माउंटेनियस जो मध्यवर्ती जो माउंटेनियस श्रेणी है उनमें भी जो है भूकंप आता है, जिसमें हिमालयस प्रमुख हैं और 21% भूकंप जो है इस पेटी में आते हैं। माइनर बेल्ट जहां पर 11% जो है भूकंप आते हैं, उसमें अफ्रीकन लेक्स है, रेड सी है, डेड सी है, इसके आसपास के एरिया जो है इसमें शामिल है। प्लीज मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, हिंदी मीडियम वाले खास तौर पर नोट करेंगे। अंतर्जनित बाह्यजनित बल हमने डिस्कस किया है। आज भूकंप क्या है, इसके प्रमुख कारण क्या है, ये हमने डिस्कस किया है। भूकंप को कैसे मापा जाता है ये हमने डिस्कस किया है। अफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक, भूकंप के क्या प्रभाव पड़ते हैं ये हमने आज डिस्कस किया है। सिस्मोग्राफ यंत्र क्या है ये हमने डिस्कस किया है। पीएसएल तरंगे क्या होती हैं ये डिस्कस किया है। भूकंप का वितरण भारत में कैसे है, इसकी तीनों बेल्ट क्या क्या है ये डिस्कस किया है। इनके कारण में दरारी भूकंप, ज्वालामुखी भूकंप, नियात भूकंप, एक्सप्लोजिव भूकंप और प्लेट विवर्तनिक भूकंप, ये हमने कंप्लीट डिस्कस किया है। टुडे I again try for my best and that is my first video of chapter 5 in 11th class. If you like my video, please share it and subscribe my channel. Stay home and be happy. Please do hard work and be happy. Thanks to all.